So students, welcome back to Gurukulam online classes. I am Swapnil Agrawal and today we are going to learn about kinetic energy. So first let us know what is kinetic energy, what is its definition. So kinetic energy is defined as, its definition is half mv square, where m stands for mass and v stand for velocity. So if there is an object having mass m and moving with velocity v, then it must have energy that is known as kinetic energy, and the amount is half mv square. Two main points about this energy is that the first point is that it does not depend on direction. It does not depend on direction. What we mean by this statement that if the body is going up or body is going left or it is going right, if its velocity is same and mass is same, then in all the three cases the kinetic energy must be same because it does not depend on direction. The second most important point in this kinetic energy is it its unit is joule. We measure kinetic energy in joule. The symbol of joule is J. And the third important point of kinetic energy is one more point. I have said 2 points, but there are 3 points. The third important point is that you can see in the formula that there is a mass and there is a velocity. Mass can never be negative. Velocity can be negative, but as there is a square, it will be positive. So kinetic energy can never be negative. It is always a positive quantity. So this is the third point. Kinetic energy is always positive. So hope you know these things what I have told just to you. Definition of kinetic energy is half mv square, where m stands for mass, v for velocity. If a block of mass m moving with velocity, it must have energy known as kinetic energy, and its amount is half mv square. The first point is that it does not depend on direction, whether you move left, right, up. If the mass is same, velocity is same, then kinetic energy must be same. Its unit is joule. We measure it in joule. The symbol is J, and it is always a positive quantity. Now we will take up a numerical and understand its more depth. So let's see that let there is a bullet having the mass of 50 gram and moving with a speed of 200 meter per second. Let's see a numerical of it. Now on his way of bullet there is a ply, and the thickness of the ply is given as 20 centimeter. The thickness of the ply is given as 20 centimeter. When this bullet will encounter this ply, it will pierce it and it comes out with only 10% of kinetic energy. When it pierces the ply, it comes with 10% of kinetic energy. We want to know its final velocity. The question is, we want to know its final velocity. Let us repeat that. There is a bullet of mass 50 gram moving with speed 200 meter per second. On its way, there is a ply whose thickness is given as 20 centimeter. This is the thickness of the ply. And when it pierces it, it emerges with only 10% of kinetic energy, and we want to know its velocity. So let us calculate first its initial kinetic energy. So as we know, the formula of kinetic energy is half mv square. We will apply it. We will put the formula half mv square. Putting the value, mass is 50 gram. All the numbers should be in SI. SI is kg. So first we will convert gram into kg. It will be 50 by 1000. And velocity is 200 meter per second. It is already in SI unit. We will put as it is 200 by square. When we will solve it, we will get 25 into 200 upon 1000. So by solving it, we will get
1000 joule. So initial kinetic energy of the bullet is 1000 joule. As in the question, it is given only it emerges with only 10% of its initial kinetic energy. So let us see what will be its final kinetic energy. So according to question, the final kinetic energy is 10% of initial kinetic energy. We already have calculated initial kinetic energy. What it is come to be 1000. So we'll multiply by 1000, and what we will get? There should be 100. When we multiply, 20 will cross and it will be 100 joule. So what we see that after coming out of the ply, its kinetic energy final is 100 joule. Now our question was we have to find the velocity. So we'll put again the formula of kinetic energy. I hope you remember that the formula of kinetic energy is what? Half mv square. So we'll put the formula half mv square. Kinetic energy final we already calculated, it is 100 joule. Half, the mass is 50 gram of bullet. Again we will put in kg divided by 1000, and we want to know v square. So by solving it, what we will get? 5 1 ja 5 2 ja 20, cross multiply it, we will get 40 square, then we will get 4000 v square, and we will take under root, it will become 2 under root of 1000, or further solving we will get 20 under root of 10 meter per second. So this is our final and required velocity. So I hope you remember what its definition, what is their point, and we already have deal with a numerical that will make you more understand this topic. Thank you so much. For more videos, subscribe this channel, like this video, comment, and we will touch in further video. Thank you so much. Welcome back to Gurukulam online classes. This side Swapnil Agrawal as a physics teacher, and today our topic is, as you can see in the board, work done by a constant force in an interval. So let us see what this means. So if we define it, work done is when there is displacement of force. When there is displacement of force. Whenever there is a displacement of force, we say that work is done by that force in an interval. What, in terms of physics and formula, what we write this as? W equal to F dot D. So mathematically it is written as W equal to dot product of force into displacement. The dot product open as F D cos theta. What is F? F is the force, D is the displacement, and cos theta is a smaller angle between force and displacement. You see this diagram, there is a block and force is acting on it, and this is the displacement and the angle is theta. So as I say that when there is displacement of force, it means that we have to take that component of force which is along the displacement. So we can divide the force into two components. The component which makes the angle is known as cos theta. It will be cos theta, and the component which is perpendicular to cos theta, it is known as sin theta. So this is sin theta. So we already have divided this force into cos theta and sin theta. So as you can see that the component of force which is along the displacement is F cos theta, and mathematically I have written also Fd cos theta, which can be written as F cos theta into D. So we have to take that component of force which is along the displacement, or we can say that when there is a displacement of force. So let us see by an examples day-to-day life, and you say that whether the work is done or not.
Let us say take the first example. If there is a wall and you are pushing it, this is a wall and you are pushing it. You are applying the force at particular point A point. You can you tell that work is done or not? The work is not done, as I have said that there must be a displacement of force. Your force is not displacing. It is at all the time at point A. So we say that no work is done. Work is not done. Let us take a second example. In the second example, you are applying the force at point A and then you are moving to point B. Then you are moving to point B. So you can clearly see that the wall is not moving, but your contact point is moving. The force is moving. There is a displacement of force. This displacement, let us say it is D. So there is a work done which is F into D. So there must be a displacement of force, then only we can say that the work is done. Let us see more example to concrete your knowledge about work. That there is a ball and a earth. As you know that the earth pull every object towards its center. So the earth is applying the force mg, pulling the ball towards its center. Let the ball is was at A, then the ball moves to B. As you can see that mg was acting at A, then this force is also acting at B. There is a displacement of the force. Let us say that this displacement is D, then there must be a work done that is equal to force in the direction of displacement, that is mg into D. Let's take one more example. Let there is a slope which is a smooth. As the slope is a smooth, this block will move down. This block will move down from point A to point B. Displacement is always from initial position to final position. Initial position is A and final position is B. Let this is be D. When we talk about the forces acting on the block, there are two forces acting on the block. One is by the earth. Earth always pull every object vertically downward. And second is the contact surface. The contact surface always apply force perpendicular to itself. But as I told you, we are only interested about that forces which is along the displacement. We are only dealing with that forces which along the displacement. So neither mg nor normal is along the displacement. But in physics, if there is a force, we can take its component. Like this, the force was not along the displacement, but we have take the component. The component was along the displacement what f cos theta. जो पास होता है एंगल के उसको cos लिया जाता है. तो यहां पे भी मान लेते हैं ये आपका एंगल है थीटा है 90 है और जब आप कंपोनेंट लोगे तो आपका ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल कम mg cos थीटा. आपने mg को डिवाइड कर दिया है. अब आप बताइए डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा फोर्स जा रहा है? क्या m जा रहा है? नहीं जा रहा है. क्या mg cos थीटा जा रहा है? नहीं जा रहा है. तो हमारा वर्क डन क्या होगा बच्चों? करेक्ट, हमारा वर्क डन होगा, हम वही फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जा रहा है, दैट इज द mg sin थीटा. सो आवर वर्क डन इज mg sin theta into d. Let us take the last example to make sure that you understand completely this concept. Let us take a smiley ball. When we compress the smiley ball, when we apply the force, let's see, we are applying the force in the smiley ball. और हम जानते हैं जब स्माइली बॉल को हम दबाएंगे तो वो दबेगी. जब स्माइली बॉल दबेगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. मान लेते हैं शेप ऐसा हो गया. जैसे जैसे बॉल अंदर जाती जाएगी दबती जाएगी आपका फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. पहले फोर्स यहां लग रहा था, अब फोर्स आपका यहां लग रहा है. तो आप देख सकते हो आपने फोर्स का क्या कर दिया है? डिस्प्लेसमेंट कर दिया है. देखिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है. एक मिसकंसेप्शन होता है वर्क डन में कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए,
लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, स्माइली बॉल वहीं की वहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स यहां लग रहा था ए पॉइंट पे, अब फोर्स और अंदर चला गया है बी पॉइंट पे, तो देयर इज अ वर्क डन ऑफ एफ इंटू डी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस keep subscribe this channel, like this video, comment, and we will meet you on my next video. Thank you so much. So welcome back to Gurukulam online classes. This side Swapnil Agrawal, and I am here to teach you yet another topic, that is work energy theorem. तो बच्चों, हमने पहले ही एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। अब इनका क्या रिलेशन है, इसको एक थ्योरम समझाती है, उस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले थ्योरम को मैं लिखता हूं और फिर मैं उसको समझाता हूं आपको। तो व्हाट द थ्योरम से दैट द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। In physics, change always means final minus initial. So it will be final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is the theorem that relate work with energy. Net work done is always equal to change in kinetic energy. जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, इस पेन के पास स्पीड है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो क्या अपने आप से बढ़ी? क्या नहीं, मैंने इस पे वर्क किया, मैंने मेरा जो फोर्स था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए इसके पास स्पीड थी तो इसका एनर्जी है, स्पीड बढ़ गई, अब इसमें नहीं बढ़ी, हमने वर्क किया। तो बिना वर्क किए आप एनर्जी में चेंज नहीं ला सकते हैं। दैट इज द थ्योरम, सो सिंपल। नेट वर्क डन अगर आप करते हैं तब भी एनर्जी में क्या है, चेंज पॉसिबल है। इसका एक अपन कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। अगर नेट वर्क डन नहीं होगा, अगर नेट वर्क डन जीरो होगा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो फिर से हम इसको दोहराते हैं कि अगर आपको एनर्जी में चेंजेस लाने हैं, ठीक है, जैसे आप बाइक में जा रहे हो, आपकी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर है, आपने ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ, जो रोड है, रोड का जो फ्रिक्शन है, उसने क्या किया, वर्क किया, और आपकी स्पीड क्या हो गई, 60 से मान लेते हैं 20 हो गई। तो आपकी स्पीड कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हो गया, चेंजेस आ गया। तो कैसे आया, अपने आप तो आया नहीं, आपने ब्रेक लगाया, अर्थ के फ्रिक्शन ने वर्क किया, तो बिना वर्क किए एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता है। दैट इज द थ्योरम एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज W net equal to change in kinetic energy. Let us see a numerical related to this theorem. तो मानते हैं कि एक कार है और कार की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक लगता है कार में। जब ब्रेक लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो रोड का है वो अपोजिट लगेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। अब वेलोसिटी आगे तरफ है, एक्सीलरेशन पीछे तरफ है, तो ऑब्वियस है कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ डिस्टेंस के बाद, ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन 5 मीटर। 5 मीटर चलने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें निकालना है इसमें नेट वर्क डन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, नेट वर्क डन। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास तरीका है F cos थीटा इंटू डी, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, वर्क का फॉर्मूला। सेकंड क्या तरीका है, हम वर्क को एनर्जी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसके पास स्पीड है तो इसके पास एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, याद करिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था, करेक्ट, हाफ mv²। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मान लेते हैं कार का मास है 1000 kg। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। क्या हम डायरेक्ट रख दें 80, हम डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रख सकते। मैंने आपको पहले समझाया था, सारी वैल्यू SI होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर SI नहीं है, मीटर पर सेकेंड है। तो क्या करेंगे हम पहले इस वैल्यू को 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ आएगी 80 इंटू 80, 25/18 इंटू 80। अब हम निकालते हैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी वो क्या आएगी, हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है इसका 1000 kg, पहले से SI में है तो हम 1000 पुट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 km/h। फिर से हमें इसमें किसको चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 5/18 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह हमारी वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू है और एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन। इस फॉर्मूले से निकालेंगे W नेट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल हमने निकाल लिए, इनिशियल निकाल लिए। आप जब कैलकुलेट करेंगे और हम जब वैल्यू रखेंगे इसकी, क्या फॉर्मूला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू रखने के बाद ये जो आएगा 108024.6 जूल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये थ्योरम, वाइल थ्योरम और रिलेटेड न्यूमेरिकल। और जैसे वीडियो के लिए कीप लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस विल मीट इन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। Welcome back to Gurukulam online classes. From this side, this is Swapnil Agrawal with yet another topic, as you can see in the board, that is potential energy. तो चलिए पहले समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इसको लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अर्थ फील्ड। अर्थ फील्ड ये वो एनर्जी है जो अर्थ की फील्ड में स्टोर होती है। अर्थ की फील्ड से मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये पेन देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप। अब इसकी स्पीड क्या है, 0 है। इसकी स्पीड आ गई ना, कैसे आई, अर्थ ने क्या लगाया, फोर्स। अब जो धरती माता है उनके हाथ तो निकले नहीं है कि उनको पकड़ के मारकर को नीचे ले आई है। तो जो अर्थ है उसने एक फील्ड पैदा की, उस फील्ड के अंदर एक मार्कर था। तो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो फोर्स लगाती है, तो फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया है। ठीक है, इसलिए मार्कर क्या गया है, नीचे गया है। तो वही फील्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो फील्ड एनर्जी भी स्टोर करती है। जैसे कि स्प्रिंग, जब आपने गुलेल से तो कुछ आम वाम तोड़े होंगे, या गुलेल तो यूज किया होगा, कैटापुल्ट यूज किया होगा। तो जब गुलेल को आप खींचते हो तब वो खिंच जाती है गुलेल, तो उसमें भी एनर्जी क्या जाती है, स्टोर जाती है। किसमें एनर्जी स्टोर हुई, गुलेल में। इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब उसमें आप पत्थर लगाते हो, उस पत्थर की स्पीड आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहां से आई, तो जो गुलेल ने स्टोर की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही रिलीज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो उसी तरह अर्थ की फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करती है, कैसे रिलीज होती है, यही तो अपन को आज देखना है बेटा। तो इसका अगर हम देखें मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहां m है हमारा मास, g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है क्या, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो जो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। और कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो एक्सीलरेटर हमारे हाथ में होता है, जितना चाहे उतना हम एक्सीलरेटर ले सकते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सीलरेटर फिक्स होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h है हमारा हाइट फ्रॉम रेफरेंस, हाइट फ्रॉम रेफरेंस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक ब्लॉक है जो हम A से B तक ले जा रहे हैं, तो कितनी हाइट तक चला गया, यही हमारा रेफरेंस है जिससे हम उसको नापेंगे हाइट को।
तो यहाँ हाइट 0 थी, यहाँ हाइट आ गई है, h हाइट आ गई है, मास था m। तो जब मास था m था, इस ब्लॉक की हाइट h आ गई है, तो इस ब्लॉक की वजह से जो आसपास अर्थ की फील्ड है उसकी एनर्जी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? mgh। अर्थ की जो फील्ड की एनर्जी है वो बढ़ गई है mgh। अब कुछ एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए वही हम ब्लॉक ले रहे हैं और ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन ले जा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, क्या वो ब्लॉक अपने से ऊपर जाएगा? क्या ये मार्कर अपने से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगने वाला है वो ऊपर की ओर लगने वाला है, फोर्स बाय मैन। अर्थ कहां फोर्स लगाती है? हमेशा जो अर्थ के द्वारा फोर्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना होता है? mg। तो अर्थ का फोर्स लग रहा है बच्चा mg। ये इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की, ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की बीच की दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं ये था आपका h। क्या था डिस्प्लेसमेंट आपका? h। तो यहां पे दो लोग इन्वॉल्व हुए, एक तो अर्थ इन्वॉल्व हुई और एक तो हम इन्वॉल्व हुए। हमने वर्क किया, हमारे द्वारा वर्क कितना हुआ लिखते हैं, हमने आपको बताया था। वर्क में हम वही फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो हमने लिया फोर्स बाय मैन, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। अब हमारा वर्क डन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। जब भी आप वर्क करोगे, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको सिखाया था, जब भी वर्क होगा तो एनर्जी में क्या आएगा? चेंजेस आएगा, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी में चेंजेस आ रहा है? जो हमारी बॉडी की केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी अर्थ की फील्ड की एनर्जी बढ़ा रही है। अर्थ की फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां कैसे आई? हमने जब वर्क किया, हमने उस ब्लॉक को लिफ्ट अप किया, तो वर्क होगा, एनर्जी में चेंजेस आएगा। हमारी जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, वो किस में गई? अर्थ की फील्ड में स्टोर हो गई। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हमने दिया वर्क डन हमारे द्वारा था F9/h। सो अवर केमिकल एनर्जी stored in field of earth as potential energy। अब सेकेंड इसका लेते हैं अपन। जब ये ब्लॉक ऊपर था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है। ये सेकेंड सिचुएशन है। जब ये मार्कर हमने उठा दिया, अब हमने अपना हाथ हटा लिया। जब हम अपना हाथ हटाएंगे तो अपने आप आएगा ये। तो अब कौन वर्क करेगा? अब करेगी अर्थ वर्क। अब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल होता है। तो ये बच्चा अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन है बच्चा? mg है। पहले कौन था? मैन था। हमने वर्क किया था तो हमारी केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, अर्थ की फील्ड ने स्टोर कर लिया। अब यहां पे वर्क डन बाय अर्थ कितना हो जाएगा? अर्थ का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा? mgh। तो अर्थ का हो जाएगा वर्क डन mgh। फिर से थ्योरम याद करिए, जब कभी भी वर्क होगा एनर्जी में चेंजेस आ जाएंगे। तब कौन सी एनर्जी में चेंजेस आएगा? अर्थ की जो फील्ड की एनर्जी बढ़ गई थी हमारे द्वारा, अर्थ अपनी फील्ड की एनर्जी लूज करेगी। और देखिए इसके पास स्पीड आ रही है, स्पीड आ रही मतलब कौन सी एनर्जी होती है? करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हुई और किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, अर्थ कर रही है। एनर्जी किसकी घटेगी? अर्थ की। अर्थ के पास खुद की एनर्जी कौन सी होती है? करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी। जो अर्थ की फील्ड के पास एनर्जी होती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ ने वर्क किया तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इस बॉडी के पास स्पीड आ जाएगी। अब एक मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या होता है? बच्चों को लगता है कि अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट तक उठाया तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई।
mgh पोटेंशियल। ऑब्जेक्ट की कभी भी एनर्जी नहीं बढ़ती h हाइट तक, फील्ड की एनर्जी बढ़ती है। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। अगर ऐसा होता, आप ग्राउंड फ्लोर में समोसा खा रहे हो और फिर आप छत में जाके समोसा खाओगे, तो आप बताओ क्या उस समोसे में एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? वही आलू, वही मसाला, तो क्या एनर्जी बढ़ जाएगी? आप एक कॉमन सेंस लगाओ। तो ये मिसकंसेप्शन ने याद रखना, कभी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। किसकी होती है? करेक्ट, अर्थ के फील्ड की एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel for more video like this. Comment on the section box which topic you want to learn. Thank you so much.